So topic for today is tenant transfers. What is tenant transfer? And use of word transfer as opposed to transplant or graft, what do we mean? So this is, let's say, a muscle. Can you see this drawing on Yes, the sir. screen? Very clear. So this is a muscle unit. This is a tendon. And here it is attached to the, and muscle would need an intact neurovascular to be functional. If we just take the tendon from here up to here and use to bridge a gap in some other tendon, so that would be tendon graft. But if we keep the whole thing intact and make it do something else, detach it from its insertion and attach it somewhere else, this would be tendon transfer. Why we do a tendon transfer? Generally in a partially, not completely, partially paralyzed hand, where some muscles are paralyzed and their function is necessary. So we take a tendon which is expendable, which can, when we take it away from its normal work, that loss would be acceptable and make it do something else. ये ऐसे ही है जैसे आप एक चौकीदार को ले लें, उससे वार्ड बॉय का काम करवाएं. You make one muscle tendon unit to do something else. That is called tendon transfer. और किस शक्ल में करेंगे? आपका tendon injury है, tendon muscle injury है. You have lost certain movement and tendon is not repairable. Sometime it is repairable, but we have learned by experience that tendon transfer would give a better result. So we can transfer a tendon instead of repairing it. Like some time we do it an injury of flexor pollicis longus. If it's a long-standing injury, instead of repairing it with a tendon graft, sometime transfer of flexor digitorum sublimus is easier than actually repairing the tendon. This must be realized. So this must be realized that when you do tendon transfer, you don't bring any new power. You just redistribute the existing power. This is almost like a communist philosophy, that if you cannot distribute the richness, you distribute the poverty. तो कॉन्सेप्ट इस तरह का समझें कि एक बंदे के पास वैसे 100 रुपया होना चाहिए था, अब उसके पास सिर्फ 50 रुपए रह गए. So he can use 50 rupees to have a breakfast, or he can distribute it to have a breakfast, lunch, and dinner. So it is better distribution of existing power. So that's the philosophy behind tendon transfers. अब कुछ इसमें principles involved हैं, वो समझने बड़े ज़रूरी हैं. Those would be applicable in any tendon transfer. और 4 किस्म के प्रिंसिपल हैं. कुछ तो पेशेंट के साथ रिलेटेड है, कुछ मसल या मोटर के साथ रिलेटेड है. अब उस मसल ने एक रास्ते से जाना है अपने नई जगह पे, तो कुछ प्रिंसिपल राउट के साथ, और कुछ प्रिंसिपल हैं जो रेसिपिएंट, जहां आपने जाके इसको उसके साथ. पेशेंट के साथ क्या, you should have what we call tissue homeostasis. What do we mean by tissue? कि सारी swelling जो है, induration जो है, वो सारी subside होनी चाहिए before you think of doing tendon transfer. अगर अभी swelling भी है, inflammation भी है, induration भी है, तो आपकी tendon transfer काम नहीं करेगी. Patient should be cooperative and understanding. These are complex procedure, sometimes multi-stage procedure. अगर patient psychologically, mentally cooperative नहीं है, तो probably आपका procedure भी कामयाब नहीं होगा. जो उसका disorder है, that should be non-progressive. अगर neuropathy है, progressive disorder है, तो your tendon transfer will fail with the time.
Occasionally, in certain exceptional circumstances, we can think of tendon transfer, but then both patient and doctor must understand that relief or benefit would be temporary. Generally, nerve injury ke baad, all that period should pass when you are expecting spontaneous recovery. और टेंडन ट्रांसफर वगैरह हम कंसीडर करेंगे generally after 1 year after the injury. Sometimes you can do it earlier if situation becomes clear at 6 months, but generally 1 साल गुजरने के बाद ये करेंगे. इस दौरान neurological tissue में जो situation है that becomes clear, जो tissue homeostasis है that is present, और फाइनल जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है मरीज का दैट बिकम्स क्लियर. तो ये तो है इसके पेशेंट के बारे में. अब आए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मसल आपने इस्तेमाल करना है, उसमें पहली बात तो ये है कि एडिक्वेट पावर होनी चाहिए. अब पावर कितनी होनी चाहिए उसको इस मिसाल से समझने के, लेट्स से ये एल्बो है, इसमें उसे बाइसेप्स पैरालाइज है, तो उसको कितनी पावर चाहिए अगर हमने कोई मसल ट्रांसफर करना है. एक तो इट हैज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ ट्राइसेप्स. ये मसला आपको F1 चाहिए बाइसेप्स के लिए, दैट शुड बी इक्वल टू F2. फिर बाजू का अपना वेट है, ये समझ लें. फिर उसने कुछ उठाना भी है उसके, ये उसका वेट है, प्लस ये टोटल पावर चाहिए आपको. तो आपने मसल भी उस हिसाब से चुनना है कि इट शुड हैव एडिक्वेट पावर फॉर द रिक्वायर्ड टास्क. एक और कंसिडरेशन भी है, आप यू शुड बी फेमिलियर विद द मसल ग्रेडिंग 0 to 5. यहाँ 5 नॉर्मल है, 0 कंप्लीटली पैरालाइज है. एटलीस्ट 3.5 या 4 ग्रेड का मसल होना चाहिए. वो क्यों? क्योंकि 3 ग्रेड चाहिए आपको टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट. इफ आफ्टर द और कहते हैं कि हाफ ग्रेड मसल लूजेस इन इट्स इफेक्टिवनेस. अगर आफ्टर ट्रांसफर 3 ग्रेड की पावर भी नहीं है तो आपकी ट्रांसफर सारी यूजलेस. सो एटलीस्ट 3.5 और 4 ग्रेड की पावर होनी चाहिए. और दूसरी ये कंसिडरेशन के काम क्या करना है, ये है आपकी एक बुनियादी थिंकिंग कि आपको किस किस्म का मसल चाहिए. अब मसल में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक उसकी पावर या टेंशन कह लें, और दूसरी एक्सकर्शन या जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं. और ये रिलेटेड चीजें हैं. रिलेटेड कैसे हैं कि मसल, ये आप मसल समझ लें जिसके 4 फाइबर है, उसकी ये अरेंजमेंट हो सकती है. ये 4 फाइबर है एक मसल की, उसकी ये अरेंजमेंट भी हो सकती है. और ये भी हो सकती है. Now this would have 4 times power than this one, but this will have 4 times amplitude than this muscle. There is another consideration. वो है मसल का आर्किटेक्चर. नॉर्मली ये मसल का एक आर्किटेक्चर है, ये उसका वॉल्यूम है, ये उसका टेंडन है. अब मसल के जो फाइबर हैं वो इस तरह भी हो सकते हैं. इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ पेनेट. जो उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके साथ ये एंगल फाइबर्स का क्या है. ये समझें जैसे इंजन की अरेंजमेंट नहीं होती, जो वॉल्यूम है ना मसल का, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कह लें, यहाँ से आपने मसल को काटा
दैट विल टेल यू कि उसमें फाइबर्स कितने हैं. दैट इज लाइक पिस्टन, और उसका डायमीटर पिस्टन का कितना है. और ये जो एंगल ऑफ पेनेट है, दैट्स लाइक चेंजिंग द गियर. अगर तो एंगल ऑफ पेनेट हाई है तो इसकी पावर ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा. अगर पैरेलल फाइबर इस तरह है, ज्यादा पैरेलल है along the axis of the action, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और पावर, क्योंकि इधर नंबर ऑफ फाइबर्स कम हो जाएगा. इसमें देखें ना, फाइबर ज्यादा है तो उसकी पावर कम हो जाएगी. सो दैट इज रिलेटेड टू, इस चीज के साथ रिलेटेड है. एक तो वॉल्यूम मसल का क्या है, उसका एंगल ऑफ पेनेट क्या है, पेनेशन एंगल जो, और दूसरा फाइबर की अपनी लेंथ क्या है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकती. These two things will determine के पावर कितनी है और एम्पलीट्यूड. Why एम्पलीट्यूड इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि muscle or tendon has to move certain distance to accomplish a task. Generally जो wrist extensors हैं उनका एम्पलीट्यूड या रिस्ट फ्लेक्सर जितने भी प्राइम रेज वो है 30 के करीब, 33 कह लेंगे, लेकिन आसानी के लिए 30 कह लें उसे. जो फिंगर फ्लेक्सर्स हैं, सबलिमाई और प्रोफानी, उनका एम्पलीट्यूड है 70. और जो फिंगर एक्सटेंसर्स और एफपीएल, उनका एम्पलीट्यूड है 50. अब कॉमनली हम इस्तेमाल करेंगे एक रिस्ट मूवर को ट्रांसफर कलर से करते हैं, एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस को ट्रांसफर करते हैं फ्लेक्सर डिट्रोन सब्लिमस में फिंगर फ्लेक्शन के लिए. अब फिंगर फ्लेक्शन के लिए हमें चाहिए 70 एम्पलीट्यूड, लेकिन उसका अपना एम्पलीट्यूड 30 है, बट स्टिल इट इज सक्सेसफुल. सक्सेसफुल कैसे होता है कि आपने वो 30 तो वो एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस अपने जोर पे कर लेगा, फिर पेशेंट एक्सटेंड कर लेगा रिस्ट को 30 डिग्री, तो वो तकरीबन 60 के करीब पहुंच जाएगा, तो वो फिंगर्स पूरी बंद हो जाएगी. सो दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक तो एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट है ना, दूसरा फिर टीनोडीजिंग का. टीनोडीजिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब टेंडन क्रॉस करेगा मल्टीपल जॉइंट्स को, तो यू कैन, अभी तक किसी ऑडियंस के किसी जहन में कोई सवाल हो, कुछ मसल के क्या एट्रीब्यूट्स हैं विच आर लुकिंग फॉर. अब आपने एक टेंडन उसको डिसइंसर्ट कर लिया उसकी इंसर्शन से. अब उसका एक रास्ता जहां से उसने जाना है नई जगह, इट शुड बी एज स्ट्रेट एज पॉसिबल. एक्यूट एंगल जो है उनको अवॉइड करें, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, इसको अवॉइड करें. और जनरली थ्रू द ब्रॉड सबक्यूटेनियस प्लेन, फेशिया में से गुजरने से बचना चाहिए. लेकिन जब आपको फेशिया में से गुजरना है, मसलन ये रेडियस है, ये अल्ना है, आप इंट्रासिस मेम्ब्रेन के थ्रू जाना चाहते हैं, मेक ए बिग होल ताकि आपका टेंडन वहां स्टक ना हो जाए. और ये जो होल है, मसल पार्ट शुड गो इनटू दैट. अगर सिर्फ टेंडन पार्ट इसमें होगा और टेंडन यहाँ का स्कार बन गया तो वो मूव नहीं करेगा. जब मसल होगा तो पेरिफेरी में थोड़ा बहुत स्कार बन भी जाए तो टेंडन मूव करता रहेगा. और दूसरा, आपने जहां नेसेसरी है वो आपने उसकी पुली क्रिएट करनी है. पुली की क्यों जरूरत है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर. वेक्टर क्या है? एक तो अमाउंट ऑफ फोर्स है, दूसरी उसकी डायरेक्शन है. अब मसलन आपने अपोजिशन के लिए आपने कुछ टेंडन ट्रांसफर किया है, तो व्हाट वी नीड इज ए वेक्टर फ्रॉम पिसिफॉर्म टू द एम्पी जॉइंट. ये आपने वेक्टर क्रिएट करना है. अगर आपने सब्लिमस इस्तेमाल किया तो यहाँ आपको एक पुली चाहिए ताकि ये फोर्स यहाँ से इधर डायरेक्ट हो सके. या जैसे आप एक्सटेंसर इंडिसेस प्रोपरी से इस्तेमाल करते हैं तो यू यूज अल्नर बॉर्डर एज ए पुली.
वो डॉर्सल साइड से आ रहा है अल्नर बॉर्डर पर, पुली की आपको जरूरत नहीं। तो यू हैव टू चेंज द वेक्टर। अच्छा, ये तो अब मसला आपने ले लिया, रूट का आपने डिसाइड कर लिया। तो मोटर का हो गया, राउट का हो गया। राउट के बारे में दूसरी ये चीज़ है कि एडिक्वेट स्किन कवरेज होना चाहिए। आप अगर राउट अपना को बनाएंगे नीचे जहाँ पहले स्प्लिट थिकनेस स्किन, तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए सम टाइम यू माइट हैव टू डू ए फ्लैप बिफोर यू कंसीडर टेंडेंट ट्रांसफर। अब चलें रेसिपिएंट पे, वहाँ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सपलनेस, no tendon transfer would create movement which is not there. So जो भी मूवमेंट है वो आपने टेंडन ट्रांसफर से पहले बाय फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस वो अचीव करनी है। Sometimes you might have to do the arthrolysis tendon transfer से पहले. So suppleness have to be achieved by whatever mean before you do the tendon transfer. दूसरी कंसिडरेशन ये है कि जब आपने अटैच करना है तो वो आपका जो जहाँ अटैच कर रहे हैं नया टेंडन, उसकी रिलेशनशिप क्या है विद द एक्सिस ऑफ मूवमेंट। ये मसलन रिस्ट है, ये रेडियल साइड है, ये अंडर साइड है, ये एक्सटेंशन साइड है, ये फ्लेक्शन साइड है। आप ट्रांसफर करते हैं मसलन प्रोनेटर टीरीज को एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस के साथ। अब लॉन्गस यहाँ पे अटैच है, वो एक्सटेंशन, उसका इतना एक्सटेंशन मोमेंट है लेकिन इतना उसका रेडियल डिविएशन का मोमेंट है। तो यहाँ अगर आपने वो एक्ट कर रहा है आपका टेंडन ट्रांसफर थ्रू एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, तो एक्सटेंशन के साथ उसकी रेडियल डिविएशन भी हो। अगर आप ब्रेविस के साथ लगाएं, ब्रेविस यहाँ पे है, तो एक तो एक्सटेंशन बेहतर हो जाएगी, ये देखें लंबा उसका मोमेंट आर्म है, और रेडियल डिविएशन का मोमेंट बहुत कम है। तो ये आपने देखना है कि जब आपने टेंडन ट्रांसफर उसकी रिलेशनशिप क्या है विद द जॉइंट एक्सिस फॉर द डिजायर, जो भी आपने मूवमेंट अचीव करना चाह रहे हैं उस एक्सिस के साथ आपकी टेंडन ट्रांसफर की रिलेशनशिप क्या। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है टेंशनिंग। अब ये जो टेंशन की कितना टाइट करना है आपने, इसमें कुछ तो साइंस है लेकिन ज्यादा आर्ट है। विद एक्सपीरियंस आप लर्न करते हैं कि कितनी टेंशन आपने, क्योंकि जो उसका जिस असूल पे बेस है वो असूल को अप्लाई करना प्रैक्टिकली बड़ा, वो है सार्कोमियर। सार्कोमियर की लेंथ कितनी है। अब सार्कोमियर की लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते क्लिनिकली, वो लेजर के साथ तो मेजर हो सकती है बट वो, लेकिन वो इतना टीडियस है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो अब कुछ इसके असूल हैं कि अगर तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, नर्व इंजरी वगैरह है, पोलियो है, तो यू एर ऑन टाइटर साइड। अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, यू एर ऑन स्लाइटली लूजर साइड। अब ये जो मसला है कि कितना टाइट और कितना लूज होना चाहिए, ये है जिस पे वो आर्ट आता है एक्सपीरियंस के साथ। अब जनरली कैसे, जो प्रैक्टिकल कुछ आपको बात बताऊं कि प्रैक्टिकली ये है कि जब आपने टेंडन ट्रांसफर कर दिया तो बाय नेचुरल टेंशन इट शुड होल्ड द जो भी जॉइंट डिजायर जॉइंट है इन मिड पोजीशन। मसलन आपने प्रोनेटर टीरीज को किया है ट्रांसफर फॉर रिस्ट एक्सटेंशन, एक या दो स्टिच लगा के देखें, इट शुड होल्ड द रिस्ट इन न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, ये जो भी आप इसकी टोटल मूवमेंट है एक्सटेंशन फ्लेक्शन उसके दरमियान में उसको होल्ड करें। अगर तो लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन है तो लेट्स से कि 5 डिग्री एक्सटेंशन में बेहतर होगा, अगर सीपी है तो मे बी 5 डिग्री फ्लेक्शन में, लेकिन समवेयर क्लोज टू न्यूट्रल। अब जब आपने फिंगर उसके लिए करना है, लेट्स से कि आपने टेंडन ट्रांसफर किया है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को आपने एफडीपी में लगाया,
कितनी टेंशन होनी चाहिए कि जब आप रिस्ट को एक्सटेंड करें, इट शुड अलाउ फ्लेक्शन, और जब आप रिस्ट को न्यूट्रल में आप थोड़ा सा फ्लेक्स करें तो ये एक्सटेंशन पॉसिबल होनी चाहिए। अब जब आपको एक्सटेंड में रिस्ट को एक्सटेंशन में ले जाएं तो बाय इट्स नेचुरल टेंशन, एक दो स्टिच लगा के देखें, इट शुड अलाउ फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर। ऑलमोस्ट सिमिलर विद फिंगर एक्सटेंशन। आपने ट्रांसफर किया है FCR को एक्सटेंसर डिटोरम कम्युनिस में, तो जब आपने रिस्ट को न्यूट्रल में लाएं तो दैट शुड एक्सटेंड द MP जॉइंट, स्ट्रेट हो जाए MP जॉइंट, और जब आपने इसको एक्सटेंड किया है दैट शुड अलाउ फ्लेक्शन। सो दोज आर सम ऑफ द गाइडलाइन। लेकिन जो फाइनली फीलिंग है सर्जन के हाथ में कि कितना टाइट है, वो बड़ा जरूरी है, और कुछ आपको मैंने जनरल गाइडलाइन दे दी है। तो ये तो है टेंशन के बारे में। अब ये ऐसे बेसिक प्रिंसिपल हैं जो हर वक्त आपके मद्देनजर रहने चाहिए इफ यू वांट योर टेंडन ट्रांसफर टू बी सक्सेसफुल। अब चलें कुछ स्पेसिफिक, और सबसे ज़्यादा आसान है इस सारे प्रिंसिपल समझने के लिए, इसको अप्लाई करें रेडियल नर्व पॉलिसी में। विद द टाइम तो आप बहुत सारी ये जो एक्सरसाइज है ये अपने दिमाग में कर सकते हैं, लेकिन शुरू में मेरी एडवाइस ये है कि ये गो थ्रू दिस एक्सरसाइज, पेपर पे लिखें कि रेडियल नर्व पॉलिसी में कौन कौन से मसल पैरालाइज हुए। अब ऊपर से शुरू हो जाएं, लेट्स से कि वो ट्राइसेप्स बच गया, नीचे आए जो आम सिचुएशन है, तो कौन कौन से, एनकोनियस होगा, और कौन सा सुपिनेटर होगा, ब्रेकियोरेडियलिस है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर। नाउ ब्रिंग दैट प्रिंसिपल ऑफ सिनर्जिज्म। अगर आप रिस्ट फ्लेक्सर को फिंगर एक्सटेंसर में लगाएंगे तो दैट वुड बी ए सिनर्जिस्टिक ट्रांसफर। अब जो सबसे ट्रेडिशनल पुरानी टेंडन ट्रांसफर है वो है यूज ऑफ फ्लेक्सर कार्पल नारस फॉर ट्रांसफर टू एक्सटेंसर डिटोरम कम्युनिस। अगर palmaris longus अवेलेबल है, दैट इज इजीली एक्सपेंडेबल, जहां वो एक्सपेंडेबिलिटी का प्रिंसिपल है कि उसका कोई लॉस नहीं है, उसको जनरली अटैच करेंगे एक्सटेंसर पोलोसिस लॉन्गस में, उसको थर्ड कंपार्टमेंट में से निकाल लेंगे, जिसे कहते हैं रीरूटेड एक्सटेंसर पोलोसिस लॉन्गस ट्रांसफर, palmaris longus टू रीरूटेड एक्सटेंसर पोलोसिस लॉन्गस, उससे कुछ एबडक्शन भी आ जाती है। तो ये एक बड़ी कॉमनली डन और बड़ी ट्रेडिशनल टेंडन ट्रांसफर है। तो इसको अब समराइज हम कर लेते हैं। तो सबसे कॉमन जो है प्रोनेटर टीरिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारस, ये रिस्ट एक्सटेंशन के लिए, ये फिंगर एक्सटेंशन के लिए, और palmaris longus को थंब के लिए। इसे कहते ही फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारस ट्रांसफर है। बड़ी अच्छी ट्रेडिशनल ट्रांसफर है, लेकिन इस पे जो एतराज़ है लोगों को जो कॉमन मूवमेंट है जिसे डार्ट थ्रोइंग मूवमेंट, वो रिस्ट एक्सटेंशन इज एसोसिएटेड विद रेडियल डिविएशन एंड रिस्ट फ्लेक्शन इज एसोसिएटेड विद रिस्ट फ्लेक्शन, और जिसको इस मूवमेंट की ज़रूरत है उसमें शायद ये टेंडन ट्रांसफर इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो फ्लेक्सर कार्पल नारस का एक्शन है, रिस्ट फ्लेक्शन एंड अल्नर डिविएशन, वो अफेक्ट होने का खतरा है। किस किस को ज़रूरत है? एक तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को जिसने वो नेलिंग करनी है, हैमर करना है, ठीक है। दूसरा लोहार को जरूरत है, और जिसने शूट करना है पुलिसमैन को पिस्टल के साथ, उसको भी जरूरत होगी। तो इन सूरतों में इसको जनरली अवॉइड करना चाहिए। अब इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट बड़ा आसान है, प्रोनेटर टीरिस को तो रहने दे, फ्लेक्सर कार्पाई की जगह आप फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस ले लें, और palmaris longus है तो उसको रहने दे ऐसे ही। दिस वुड बी जनरली कॉल्ड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस ट्रांसफर। ब्रांड भी कहते हैं इसको, रियरडन भी कहते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, उसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इसका ये बड़ी पॉपुलर ट्रांसफ़र है, एडवांटेज ये है कि बड़े छोटे इंसियन के साथ, ये आपका फोर आर्म है, ये रिस्ट है, तो एक बड़ा छोटा सा इंसिजन आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से आप 2 टेंडन ले सकते हैं।
फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस भी और पामेरस। और एक यहाँ पे इंसियन बनाएं जिसे आप समझे कि टेनन रिट्रीवल इंसियन है। इसमें आप प्रोनेटर टीरीज को भी हार्वेस्ट कर लेंगे और इन दोनों को पुल कर लेंगे। वहाँ जो प्रोनेटर टीरीज ट्रांसफर है वो तो इसी इंसियन से होगा, यहीं साथ ही पड़ा होता है एक्सटेंसर कार्पे रेडियस पर, उसमें लगा देंगे। लेकिन फिर डॉर्सल साइड पे जाके डॉर्सल साइड पे जाके आप मतलब आप ये डॉर्सल साइड है, ये थंब है ये, तो आप एक इंसियन यहाँ पे बनाएंगे और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को यहाँ पे ले जाएंगे और एक्सटेंसर डिजिटम कम्युनिस्ट में लगा देंगे। जो पामेरस लॉन्गस है, आई यूज्ड टू मेक अ फेयरली बिग इंसियन लाइक दिस। अब इसकी बजाय मैं एक ये छोटा इंसियन बनाता हूँ, एक छोटा सा इंसियन यहाँ बनाता हूँ। पामेरस लॉन्गस सीधा इधर आके आप you make junction to the rerouted extensor pollicis longus close to the radial structure. So this will become flexor carpi radialis transfer, जिसमें pronator teres है, flexor carpi radialis है और palmaris longus। अब अगर palmaris longus अवेलेबल नहीं है, जो 10 to 15% लोगों में एब्सेंट होगा, तो फिर एक आप कंसीडर कर सकते हैं बोइस ट्रांसफर या FDS। उसमें प्रोनेटर टीरीज है। अब आप 2 FDS हार्वेस्ट करते हैं, 3rd और 4th, और उनको आप इंट्रासिस मेम्ब्रेन के थ्रू ले जाके, ये आपका रेडियस है, अल्ना है, ये इंट्रासिस मेम्ब्रेन है, उनको इसके थ्रू ले जाएंगे, एक को मीडियन नर्व के एक तरफ से, दूसरे को दूसरी तरफ से। और एक FDS को आप लगाएंगे फिंगर एक्सटेंसर के साथ और एक को यूज कर लेंगे थंब के। ये आप आउटसाइड द इंट्रासिस भी कर सकते हैं, जैसे यूजुअली अराउंड द रेडियल साइड भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन यही है कि आप इंट्रासिस मेम्ब्रेन के थ्रू लेके जाएं। Obviously you will have to make a fairly large hole, avoid injury to the anterior intraosseous nerve and artery and so on। और उसका एडवांटेज जो है कि उसका वेक्टर बिल्कुल सीधा है, फिर आपको वो शायद रीरूट भी ना करना पड़े। तो ये 3 टेंडन ट्रांसफर अब आपने देख लिए हैं जो ट्रेडिशनल ट्रांसफर है। अच्छा, ये क्यों स्टक हो गया? अच्छा, एक आपने वो देख ली फ्लेक्सर कार्पेल नैरस की, फिर एक फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस की, एक बोइस। ये आपने अब जब टेंडन ट्रांसफर कर लिए, अब लेट्स से कि लेट्स गो विद दीज 2, तो अब आपने इमोबिलाइज कैसे करना है? जनरली रिस्ट एंड एक्सटेंशन, फिंगर MP जॉइंट फ्लेक्स टू अबाउट 20-30 डिग्री और फिंगर स्ट्रेट, और थंब इन पोजीशन ऑफ एक्सटेंशन। वो अब यूजुअल अपोजिशन वाला नहीं करना आपने, जैसे आमतौर पर हम एडवाइस करते हैं कि थंब ऐसे फॉरवर्ड हो, आपने इसे इन द प्लेन ऑफ पाम लेके जाना है। और लॉन्ग आर्म कास्ट लगेगी। क्यों लॉन्ग आर्म कास्ट लगेगी? आपका प्रोनेटर टीरीज ऊपर से आ रहा है, आपने एल्बो को कंट्रोल करना है और आर्म को प्रोनेशन में इस तरह की एक मोर की पोजीशन बन जाएगी, प्रोनेशन में और लॉन्ग आर्म कास्ट, रिस्ट एंड एक्सटेंशन, MP जॉइंट फ्लेक्स टू अबाउट 20 डिग्री और फिंगर्स को आपने एक्सटेंड करना है, थंब इन पोजीशन ऑफ एक्सटेंशन। और जनरली यू विल हैव टू इमोबिलाइज फॉर अबाउट 6 वीक्स। उसके बाद फिर आपने मूवमेंट अलाउ करनी है। और तो ये है अबाउट द रेडियल नर्व। क्यों जी, हारून साहब इस मौके पे पूछ लेना चाहिए, किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, करते हैं। Can I ask one question? हाँ जी आरिफ, प्लीज। Yes, sir. Sir, I just wanted to ask about the tendon transfer, the concept of end to side and end to end transfers and radial nerve, वो। अच्छा, वो जैसे मतलब उसकी जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन समझिए, जैसे प्रोनेटर टीरीज को हम लेते हैं, ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस आ रहा है, तो इसको ऐसे ही अटैच कर देते हैं। तो दूसरा चॉइस ये होगा कि इसको यहाँ से काट दें और इसको इस तरह कर दें ताकि उसकी लाइन सीधी हो जाए।
ये दोनों चॉइसेस मौजूद हैं। अब अगर आपने काट के करना है तो फिर आपकी वो लेंथ बिल्कुल एडिक्वेट होनी चाहिए। अब आप एंड टू साइड जब करते हैं तो उसमें अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो आप दोबारा कर लें। तो ये प्रोज एंड कॉन्स है। वो ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से काट लेंगे तो इसकी लाइन ज़रूर सीधी हो जाएगी, वो इसका फ़ायदा है कि एंड टू एंड करने का। लेकिन फिर बड़ी प्रिसाइज आपको लेंथ काटनी पड़ेगी। अगर एंड टू साइड करेंगे तो आप ज़रा टेंशन चेक कर लें, अगर नहीं है तो उसको चेंज कर लें, तो कोई नथिंग है लॉस। सो दोनों तरीकों के आप अपने अपने फ़ायदे और नुकसान। नाउ लेट्स गो टू द मीडियनर। अच्छा, मीडियनर में इट इज़ good to differentiate between high medianer pulsing and low medianer. लो से मुराद है कि जब फोर आर्म के मसल काम कर रहे हैं, इंजरी है आपकी डिस्टल फोर आर्म या रिस्ट लेवल, तो लेट्स गो थ्रू द सेम एक्सरसाइज अगेन। कौन कौन से मसल इफेक्टिव, लेट्स से स्टार्ट विद लो, कि आपके थीनर मसल्स कौन कौन से हैं? एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस है, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस है, एटलीस्ट हाफ ऑफ इट, एंड अपोनेंट्स, और टू लम्ब्रिकल। इनका नेट लॉस क्या है? एक्चुअली अपोजिशन। ये आपका मोटर लॉस है, लेकिन जो रियली इंपॉर्टेंट लॉस है वो है सेंसरी। वो आपने एड्रेस करना है बाय रिपेयर, चाहे कि देर से भी आए फिर भी उसका फायदा हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव सेंसेशन आ जाएगी, या सम सेंसरी नर्व ट्रांसफर। वो एक अलग मसला है, उसको आज टच नहीं करते। असल में रेस्टोरेशन ऑफ अपोजिशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अब अपोजिशन बड़ी कम्प्लेक्स मूवमेंट है। उसमें होता क्या है कि आपका ये रिट्रो पोजिशन है कि थंब ने इस रिट्रो पोजिशन जहाँ वो फिंगर के साथ है वहाँ से उसने सामने आना है, जिसमें कुछ एबडक्शन इन्वॉल्व है और फॉरवर्ड मूवमेंट इन्वॉल्व है। यहाँ से इट हैज़ टू मूव अक्रॉस अ पाम, जिसमें फ्लेक्शन और एडक्शन इन्वॉल्व है, एंड देन इट हैज़ टू रोटेट। और जो रोटेशन है उस पर पहले कई दफ़ा बात हो चुकी है अबाउट, जब वो फिंगर के साथ है तो दैट इज ऑलरेडी रोटेटेड अबाउट 50 to 60 डिग्री कंपेयर टू द फिंगर्स, और इसने फर्दर अबाउट 50-60 डिग्री रोटेट होना है। अब ये बड़ी कम्प्लेक्स मूवमेंट है, इसमें कितने मसल इन्वॉल्व हैं? कम से कम 4 एक्सट्रिंसिक इन्वॉल्व हैं और 5 इंट्रिंसिक इन्वॉल्व हैं इस सारी मूवमेंट। तो जनरली तो हमने एक ही टेंडेंट, आप एक टेंडेंट से हमने ये सारे काम लेने हैं। और कैसे होते हैं वो इसलिए हो जाता है कि लिटलर ने कहा कि एक ही चीज आपने एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस का फंक्शन स्टोर करना है, और जब थंब पाम से सामने को मूव करेगा वो खुद रोटेट हो जाएगा। एनाटमी ऐसी है कि रोटेशन इज ऑब्लिगेटरी, जब वो थंब मूव करेगा सामने को तो रोटेट हो जाएगा। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, फंक्शन रिस्टोर करना। अब ये आपका थंब है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो इसका फंक्शन है एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस का, उसका ये वेक्टर बनता है फ्रॉम पिसिफॉर्म टू द एम्पी जॉइंट। जो भी टेंडन आप इस्तेमाल कर लें, अगर फाइनली इट प्रोड्यूसेस दिस वेक्टर, दैट विल गिव यू द अपोजिशन। इसमें 2 या 3 बड़े इंपॉर्टेंट अपोनेंट्स प्लास्टिज हैं जो ट्रेडिशनल हैं। एक एफडीएस है, एक एक्सटेंसर इंडेक्स प्रोप्रियस है, और एक ह्यूबर है, उसकी एक बड़ी स्पेशल एप्लीकेशन है। ये अगर हो तो ये तो प्रेफरेबल है। अगर ये नहीं है तो ऑलमोस्ट एवरी टेंडन एंड मसल इन द हैंड हैज बीन यूज्ड फॉर अपोनेंट्स प्लास्टी। देन यू विल जस्ट रिमेंबर द प्रिंसिपल कि ये आपने प्रोड्यूस करना है। अब इसके लिए लेट्स से कि जो सबसे कामयाब वो है एफडीएस, जिसे बनायल ऑपरेशन भी कहते हैं, रियरडन भी कहते हैं, कि ये आपका हैंड है। आपने यहाँ एक छोटे से इंसिजन से एक सबली मसले लिया, जनरली 3rd
और फोर्थ ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ आपने ये आपका पीसी फॉर्म है, यहाँ इसके साथ फ्लेक्सर कार्पेल नैरस अटैच। अगर तो ये इंटेक्ट अच्छा मसल है तो इसके गिर्द भी जा सकते हैं। इसको आपने टेंडन को लिया और अराउंड दैट टेंडन यू कैन पैस इट। लेकिन जनरली जो डिस्क्राइब्ड टेक्निक है वो है कि इसका आप हाफ ले लें और इससे एक लूप बना लें, एक पुली क्रिएट कर लें और उस पुली के थ्रू ये सब्लिमस को आप इधर ले लें। अब इसमें एक चीज समझ चाहिए कि मरीज की जरूरत क्या है, उसका आपने एक्चुअल मरीज की अगर तो उसे ज्यादा एडक्शन की जरूरत है पावर की, तो इस पुली को जरा डिस्टली ले जाएं। अगर उससे फॉरवर्ड फ्लेक्शन की जरूरत, जैसे पुली थोड़ी सी प्रॉक्सिमल हो जाएगी तो उसकी फॉरवर्ड फ्लेक्शन बढ़ जाएगी। तो यू कैन एडजस्ट योर पुली कि आपने पुली को कहाँ पे रखना है। उससे उससे ये इफेक्ट होगा कि वो उसमें एडक्शन ज्यादा आती है या फॉरवर्ड फ्लेक्शन ज्यादा आती है। तो ये तो एक बड़ा ही अच्छा ऑपरेशन है एफडीएस ट्रांसफर। एक और है जिसे बर्कहाल्टर कहते हैं या एक्सटेंसर इंडेक्स प्रोप्रियस। ये इंडेक्स फिंगर के दो एक्सटेंसर हैं, सो इजीली एक्सपेंडेबल है। आपने एक छोटा सा इंसिजन बनाना है एमपी जॉइंट के ऊपर, सेकंड एमपी जॉइंट के ऊपर, और जो प्रॉपर टेंडन है दैट इज ऑलवेज अल्नर, क्योंकि वहां आपने एक्सप्लोर करके नहीं देखना। दो टेंडन है, जो अल्नर होगा वो एक्सटेंसर इंडेक्स प्रोप्रियस का होगा। इसी तरह जो लिटिल फिंगर के ऊपर जो एक्सटेंसर डीजीटी मिनिमाई है वो भी अल्नर है। सो प्रॉपर टेंडन इज ऑलवेज अल्नर। वहां से आपने ले लेना है। अब इसको ये अब एक्सटेंसर साइड समझें हैंड की। ये आपका सेकंड एमपी जॉइंट है, यहाँ आपने एक कर्व इंसिजन बनाए, यहाँ आपने एक्सटेंसर इंडेक्स ले लिया। दूसरा इंसिजन आप एक छोटा सा यहाँ बना सकते हैं या सीधा यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक इंसिजन बना लो। इसको आपने इधर से रिट्रीव कर लिया फोर्थ कंपार्टमेंट। फिर आप यूज द अल्नर बॉर्डर एज ए पुली, इसको आप अल्नर बॉर्डर के गिर्द ले जाते हैं और फ्लेक्सर साइड पे जाके उसी तरह इसको एमपी जॉइंट के पे ले जाएंगे और इसको अटैच करते हैं। अब उसकी अटैचमेंट में काफ़ी सारी रिफाइननेस है और कंट्रोवर्सी है कि उसकी कैसे अटैच करना है। जो सिंपलेस्ट है और एक्सटेंसर इंडेक्स प्रोप्रियस में तो हो भी सिर्फ वही सकता है, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है टू मेक एनी सोफिस्टिकेटेड डिफरेंस इन द अटैचमेंट। इसको आपने एबडक्टर पोलिसिस ब्रेव टेंडन में अटैच करना है। और टेंशन वही है कि जब आप करें तो थंब शुड बी इन पोजीशन ऑफ अपोजिशन, इट शुड पुल द थंब फॉरवर्ड। इसके अलावा अगर आप फ्लेक्सिडिट्रम सब्लिमस से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कई किस्म की रिफाइनमेंट है अटैचमेंट के लिए। मसलन आपकी ब्रांड अटैचमेंट है, उसमें आप इसकी दो स्लिप बना लेते हैं। एक को तो आप एबडक्टर पोलिसिस में लगाते हैं, दूसरे को थंब के ऊपर से ले जाके एडक्टर में लगाते हैं। उसका ख्याल है कि इस तरह रोटेशन ज़्यादा है। फिर एक रियरडन अटैचमेंट है कि एक तो आप एबडक्टर पोलिसिस में लगाएंगे, दूसरी स्लिप उसकी एक्सटेंसर पोलिसिस में लॉन्गेस्ट में लगाते हैं टू प्रिवेंट फ्लेक्शन एट द एमपी जॉइंट। तो ये बड़ी कॉमन अपोजिशन है। अब जो ह्यूबर ऑपरेशन का मैंने जिक्र किया था वो एक दो सूरत में, वो एक उसकी इंडिकेशन है कंजेनिटल में, जैसे ब्लॉथ टाइप 2 है, थंब हाइपोप्लेजिया है, उसमें थीनर मसल नहीं है, तो आप एबडक्टर डीजीटी मिनिमाई को लेके उससे अपोजिशन अपने प्लास्टिक करते हैं। और दूसरे कंबाइंड रेडियल एंड मीडियन पॉलिसी में एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन है। करते क्या है इसमें, तो ये आपका हाथ है, लेट से आपने इस मसल को ले लिया, ये एबडक्टर आपका एबडक्टर डीजीटी मिनिमम, इसका न्यूरोवास्कुलर आपने इंटैक्ट रखना है और इस मसल को जैसे वो किताब का सफ़ा नहीं टर्न करते, इसको यहाँ ले आते। इसका वेक्टर ठीक है,
दिस इम्प्रूव्स द कॉस्मिसिस इन अ कंजेनिटल हैंड, क्योंकि कुछ बल्क आ जाता है, तो बड़ा ही एक निफ्टी ऑपरेशन है करना इन द प्रॉपर इंडिकेशन। तो ये तो हो गया लो मीडियन पॉलिसी। अब हाई में क्या फर्क क्या होगा लो और हाई में, कि वो हाई में अब क्या होगा, वो लॉस ऑफ अपोजिशन तो होगा। अब और क्या पैरालाइज है, प्रोनेटर टीरीज है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, फ्लेक्सर डिटरम सब्लिमस है, फ्लेक्सर डिटरम प्रोफंडस है और फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। मरीज को इन नामों से गर्ज नहीं है, उसका प्रॉब्लम क्या होगा, रिस्ट तो वो फ्लेक्स कर लेगा फ्लेक्सर कार्पल नैरस के साथ, अल्नर 3 उंगलियां भी फ्लेक्स कर लेगा, क्योंकि हाफ ऑफ द परफंडस वुड बी इंटैक्ट थ्रू द अल्नर। जब ये वो फिंगर्स फ्लेक्स करेगा तो रेडियल ये मिडिल फिंगर भी फ्लेक्स हो जाएगी। अब रह जाती हैं, वो थंब फ्लेक्स नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, और इंडेक्स फिंगर फ्लेक्स नहीं होती। ये है वो टिपिकल जो टेक्स्ट बुक पिक्चर है मीडियन नर्व इंजरी की, फिंगर पॉइंटिंग साइन। सो इन एडिशन टू अपोजिशन, वो थंब फ्लेक्स नहीं कर सकता और इंडेक्स फिंगर फ्लेक्स नहीं कर सकता। तो हाइट में आपने ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें एड्रेस करनी। वो कैसे करते हैं, पहले तो आपने अपोजिशन का फैसला कर लिया कि वो अपने इंडिसेस करना है, सब्लिमस करना है। सब्लिमस इसमें अब अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो हाई मीडियन नर्व पॉलिसी है, तो अपोजिशन के लिए अक्सर एक्सटेंशन इंडिसेस प्रोप्रियस को ले लिया आपने, ठीक है। अब फिंगर थंब फ्लेक्शन या लेट्स से के थंब फ्लेक्शन के लिए आप ब्रेकियोरेडियलिस को ले सकते हैं, या आप ब्रेकियोरेडियलिस को थंब के लिए इस्तेमाल कर लें और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को फिंगर इंडेक्स फिंगर फ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन इससे एक सिंपल सोल्यूशन भी है, जो उसका टेंडन है फ्लेक्सर डिटरम प्रोफंडस इंडेक्स का, उसको बाकी टेंडन के साथ, ये उसका टेंडन है, बाकी 3 इकट्ठे पड़े होते हैं, इनको आपस में जोड़ दें। जब वो रिंग और स्मॉल फिंगर और लॉन्ग फिंगर फ्लेक्स करेगा, ये फिंगर साथ उसके फ्लेक्स हो जाए, इसको कहते हैं कपलिंग। यू डू द कपलिंग ऑफ FDP, और साथ ब्रेकियोरेडियलिस को इस्तेमाल कर लें फॉर फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। सो दिस इज अ टेंडन ट्रांसफर फॉर हाई मीडियन नर्व पल्स। ये रिलेटिवली सिंपल। अब चलें अल्नर नर्व की तरफ। ये एक बेसिक चीज ज़हन में रखनी चाहिए, हैंड में नर्व्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है। जो रेडियल नर्व है उसका प्राइमरी फंक्शन तो है रिलीज, वो उंगलियां खोलने के लिए, और रेस्ट को एक्सटेंशन में रखने के लिए, कि ताकि दैट कैन हेल्प द अदर नर्व्स फॉर पावर फ्लेक्शन। मीडियन नर्व का मेन काम अपोजिशन, ठीक। अल्नर नर्व इज द मेन मोटर नर्व ऑफ द हैंड। जो पावर का सारा काम है वो अल्नर नर्व का काम है, क्योंकि उसी के साथ उसी ने सब्लिमस और उसी ने प्रोफंडस को सप्लाई करना है। और जब भी आप देखेंगे पावर इज नीडेड, वन शिफ्ट टू द अल्नर साइड ऑफ द हैंड, और प्रेसिजन के लिए यू शिफ्ट टू द रेडियल साइड, जो मीडियन नर्व का काम है। इसका डेफिसिट देखने के लिए लेट्स गो थ्रू द सेम एक्सरसाइजेस। 4 आर्म में तो वो फ्लेक्सर कार्पाइल नैरस को सप्लाई करेगी, हैंड में किस किस को सप्लाई करेगी, ये 7 इंट्रासी हैं, 2 लंब्रिकल हैं, 3 हैं हाइपोथीनर, ठीक है। फिर एडक्टर है, एडक्टर पोलिसिस, और हाफ फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस। सो ये कितने बन जाते हैं, 13.5। तो देयर इज जो मोटर लॉस है वो दैट्स एक्सटेंसिव। अब इन सब का जो इसको जब आप फंक्शनली ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करते क्या इंट्रिंसिक, व्हाई दे आर सो नेसेसरी। अब ये देखना है आपने
मसलन ये मेटाकार्पल है, ये प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है, ये उसका मेन काम है इंट्रिंसिक का। दे प्रोवाइड दिस वेक्टर, they are flexors of the MP joint and extensors of the PAP and DIP joint. अगर ये ना होता तो flexors are just too powerful, आपकी फिंगर एक्सटेंड ही ना हो सकती, और फिर ये चूंकि मल्टी टीयर सिस्टम है that will collapse। तो जब ये पैरालाइज होता है तो ये पावर नहीं रहती, ये पावर नहीं रहती, और आपकी फिंगर जो है that collapse into जो जिसे हम क्लाइंग कहते हैं, क्योंकि ये पावर ना रही तो इसको एक्सटेंसर ने हाइपर एक्सटेंड कर दिया, इसको लॉन्ग फ्लेक्सर ने फ्लेक्स कर दिया। तो दिस इज क्लाइंग, हाइपर एक्सटेंशन एट द एमपी जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट द पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका जो इससे भी ज्यादा जरूरी फंक्शन है वो है कोऑर्डिनेटेड फ्लेक्शन। दिस अलाउज कि जब आपने फ्लेक्स करना है, चीज को पकड़ना है, तो एमपी जॉइंट फ्लेक्स बिफोर द पीआईपी जॉइंट एंड पीआईपी जॉइंट फ्लेक्स बिफोर द डीआईपी जॉइंट। लेकिन जब ये नहीं होंगे तो इस तरह फ्लेक्स होगा, आपके डिस्टल जॉइंट पहले फ्लेक्स होना शुरू हो जाएंगे। बाय द टाइम आप ग्लास तक पहुंचते हैं, योर फिंगर्स आर ऑलरेडी फ्लेक्स लाइक दिस, तो वो सिर्फ फिंगर टिप के साथ पकड़ने के काबिल होगा। ये एक बड़ा ही जरूरी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि ये जो कोऑर्डिनेटेड फ्लेक्शन है ये जाती रहे। और क्या उसका बड़ा काम है इंट्रिंसिक का, वो है साइड पिंच, पावर पिंच, ये जो की पिंच है जो एडक्टर का काम है। जब एडक्टर पैरालाइज हो गया तो फिर वो फ्रोमेंट साइन पॉजिटिव होगा कि जब वो पकड़ने के लिए हाइपर फ्लेक्शन करेगा आईपी जॉइंट। तो इसके अलावा भी कुछ मसलन आपकी आर्चेस जो लॉन्गिट्यूडनल और फ्लेक्सर आर्चेस आर मेंटेन बाय इंट्रिंसिक, वो हाथ फ्लैट हो जाता है, इन एडिशन टू क्लाइंग हाथ फ्लैट भी हो जाता है। फिर इंडेक्स फिंगर को एबडक्ट करने का काम, जब आपने साइड पिंच करनी है तो उसने रेजिस्ट करना है विद द एक्शन ऑफ फर्स्ट डॉर्सल इंट्रासी, ये सारे इंट्रिंसिक के काम। तो लेकिन मेन जो डेफिसिट होगा वो क्लाइंग होगी एंड लॉस ऑफ एडक्शन। अब इसका हल क्या है कि आपने अगेन वही एक वेक्टर पैदा करना है जो इसका ओरिजिनल, ऐसी पावर आपने वो वेक्टर रखे जो विच इज वोलर टू द एमपी जॉइंट एंड डॉर्सल टू द डीआईपी जॉइंट, ये आपने क्रिएट करना किसी तरीके से। अब इसका जो अगर तो कोई मोटर अवेलेबल है तो दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक तो एक्टिव जब एक मोटर अवेलेबल है, और एक पैसिव है जब कोई मोटर अवेलेबल नहीं होगा। तो आप या टीनो डीसिंग कर लेंगे टेनिन ग्राफ के साथ, या कैप्सूलोडिसिस कि ताकि ये जॉइंट हाइपर एक्सटेंशन में जा ही ना सके। क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि अगर एमपी जॉइंट की हम हाइपर एक्सटेंशन प्रिवेंट कर लें किसी भी तरीके से, चाहे वो नकल बैंडर स्प्लिंट से कर लें, ऑपरेशन से कर लें, या कैप्सूलोडिसिस से कर लें, दैट विल करेक्ट योर क्लाइंट। क्योंकि क्लाइंट तो उसी वक्त होगी जब एमपी जॉइंट पहले हाइपर एक्सटेंशन में जाएंगे, पीएपी जॉइंट फिर फ्लेक्शन में जाएंगे। ऑल दीज डिफॉर्मिटीज हैंड की वो जिगजैग डिफॉर्मिटी है, पहले एक जॉइंट एक डायरेक्शन में जाएगा, उसका अगला जॉइंट फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। तो क्लाइंट का जो प्रिंसिपल है वो तो है रिलेटिवली सिंपल कि आपने हाइपर एक्सटेंशन एट द एमपी जॉइंट प्रिवेंट कर लें तो आपकी क्लाइंट दुरुस्त हो जाएगी। अब ये देखें कि ये हम हाउ डू वी अचीव दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये कैसे अचीव होता है। इसके जो सबसे कॉमन ऑपरेशन है वो तो है, या जो सबसे ट्रेडिशन वो है बनाल स्टाइल। बनाल्स इनिशियली यूज ऑल फोर सब्लिमाई, बल्कि उसने जाके फिर उसकी अटैचमेंट के उसकी दो स्लिप्स करके एक को उस वो लगाता था रेडियल साइड पे, एक को अल्नर साइड पे, थिंकिंग दैट के वो एडक्शन एबडक्शन भी आ जाएगी, हालांकि वो नहीं हुआ। लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज है, एफडीएस इज अ वेरी पावरफुल मसल, बड़ा कॉमनली उसको जब उसने अटैच किया, ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपने सब्लिमस को ले लिया,
ये उसका मेटाकार्पल है। तो इसको आपने, ये उसका एक्सटेंसर टेंडन है, ये लैटरल बैंड है। तो सबलीमस को आपने वोलर टू द डीप ट्रांसफर लिगामेंट गुजार के इसके लैटरल बैंड के साथ लगा। अगर ये थोड़ा सा भी टाइट या उसके बगैर भी पावरफुल मसल है, दिस विल कॉज स्वान नेक। ये उसका मेन डिसएडवांटेज। उसको स्टाइल ने कैसे एड्रेस किया कि बजाय 4 के उसने कहा सिर्फ एक ही काफी। एक को उसने एक सबलीमस लेके उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये 4 उसकी स्ट्रिप बन गई एक ही टेंडन की। लेकिन रूट अपना समझना जरूरी है कि ये उसने ये इस तरह करते हैं कि ये रिस्ट है। यहाँ आपने अगर लेट्स से कि मिडल फिंगर का आपने लिया है तो आप यहाँ एक ओब्लाइक इंसियन कर लें सबलीमस। उसका सेकंड इंसियन आपको यहाँ पे एक पाम में करना पड़ेगा क्योंकि आप क्याज़मा से दूर हो गए हैं यहाँ लेने के लिए। और फिर यहाँ उसके 4 हिस्सों में इसको यहाँ रिट्रीव करके 4 उसकी स्ट्रिप, एक इंडेक्स फिंगर के लिए, एक मिडल के लिए, एक रिंग के लिए और रूट वो पहले मैंने बताया आपको। अब उसकी टेंशन कैसे एडजस्ट करेंगे जब आपने लगाना है उसको। कि रिस्ट को आप जब न्यूट्रल में रखेंगे, जब आपने ये टेंडन को यहाँ पे अटैच कर दिया, हियर यहाँ इट विल कम वोलर टू दिस डीप ट्रांसफर लिगामेंट और इधर लगा दिया आपने इसको कि रिस्ट जब आपकी न्यूट्रल में है तो योर फिंगर शुड बी इन इंट्रिंसिक प्लस पोजीशन, ठीक है। और जब आपकी रिस्ट थोड़ी सी फ्लेक्स हो तो दैट शुड अलाउ द एक्सटेंशन ऑफ द एमपी जॉइंट। तो ये इस तरह इसकी टेंशन एडजस्ट करें। बड़ा अच्छा ऑपरेशन है लेकिन वो स्वान नेक का मसला फिर भी कभी कभी हो जाता है। उसको हल करने के लिए ब्रांड ने कहा ये आप इसको छोड़ें, आप लें एक्सटेंसर, रिस्ट एक्सटेंसर लें। उसकी जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन थी वो उसने लिया एक्सटेंसर कार्पे रेडियस ब्रेविस। इसलिए 2 ऑपरेशन है, एक ब्रांड 1 है, एक ब्रांड 2 है। उनके राउट में फर्क है। जो ब्रांड 1 जो कॉमनली किया जाता है वो है ब्रांड 2। उसको पहले कर लेते हैं कि ये फोर आर्म, उसने एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस को कहता लें, पहले शुरू में ब्रेविस को लिया, इसको वापस यहाँ पे ले जाए, यहाँ से इसको वापस लाएं थ्रू द कार्पल टनल और इसको टेंडन ग्राफ लेके इसको आपने एक्सटेंड करना है और आगे वही 4 स्टेप बनाएंगे। इट विल पास थ्रू द कार्पल टनल और आगे रूट इसका वही है। मसलन ये है नहीं एमपी जॉइंट, रूट इसका वही है, कार्पल टनल से गुजार के फिर इज वोलर टू द एमपी जॉइंट और यहाँ आपने उसको लैटरल बैंड के साथ अटैच कर। दिस वुड बी ब्रांड 2। जो ओरिजिनल ब्रांड था कि भी वो डॉर्सल साइड पे ही रहे, यहाँ आपने एक्सटेंसर कार्पे रेडियस ब्रेविस को ले लिया, उसको टेंडन ग्राफ्ट के साथ एक्सटेंड किया, 4 स्ट्रिप बनाई एंड पास इट थ्रू द इंट्रासियस स्पेस, यहाँ से गुजार के फिर बाकी रूट वही है नीचे ले। इसका डिसएडवांटेज ऑब्वियसली कि यहाँ पर स्कारिंग हो जाएगी। जब आपको इंट्रासियस स्पेस से गुजारेंगे तो कुछ चांस होगा स्कारिंग का। लेकिन एक तो स्पेसिफिक इंडिकेशन है उसके लिए ब्रांड 1 इज स्टिल प्रेफरेबल कि विद द टाइम मरीज ये हैबिट डेवलप कर लेता है टू फ्लेक्स द रिस्ट टू ओपन द फिंगर, क्योंकि खिलाएंगे उसकी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट हिम आउट ऑफ दिस हैबिट। इन दैट सिचुएशन ब्रांड 1 इज स्टिल प्रेफरेबल कि हर चीज आप डॉर्सल पे रखें एंड फोर्स द पेशेंट टू ब्रिंग द रिस्ट इनटू एक्सटेंशन। अब जब आपने ये करने हैं दोनों की टेंशन एडजस्टमेंट इज डिफरेंट।
जब आपने ब्रांड 2 किया, जो कॉमनली किया जाता है, तो रिस्ट को आपने न्यूट्रल में रखना है, और जब आपने टेंशन एस्टेट करनी है उस वक्त फिंगर्स आपकी इंट्रिंसिक प्लस पोजीशन में होनी चाहिए. दिस इज हाउ यू एडजस्ट द टेंशन इन ब्रांड 2. और ब्रांड 1 में आपकी रिस्ट एक्सटेंशन में होगी. उसके लिए उसने एक स्पेशल पोस्ट भी ब्रांड ने बनाई कि रिस्ट को यहां रखना है, तो फिर फिंगर आपकी इंट्रिंसिक प्लस पोजीशन. तो दोनों की टेंशन एडजस्ट में फर्क है. अब ये तो एक दो तीन बड़े कॉमनली डन प्रोसीजर हैं. बनैल स्टाइल हो गया, ब्रांड 1 हो गया, ब्रांड 2 हो गया. इसके अलावा भी कुछ प्रोसीजर है. मसलन जैनकोली का लेसो प्रोसीजर है कि आपने सबलिमस को लिया और उसको A1 पुली के साथ ही आपस में उसके ऊपर से ला के उसका ऑब्जेक्टिव वही जैसे पहले मैंने बताया कि दैट विल प्रिवेंट द हाइपर एक्सटेंशन और क्लाइंब दुरुस्त हो जाए. लेकिन वो जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है जो लैटरल बैंड में लगाने से आएगी या वो नहीं आएगी. इसी तरह बर्क हाल्टर है, वो भी है, वो बोन के साथ अटैच कर देता है. अगेन एमिंग एट करेक्टिंग द क्लाइंब. वो है एक फर्दर इसमें सोफिस्टिकेशन कि आप अचीव करना क्या चाह रहे हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक वेक्टर क्रिएट करना है विच इज वोलर टू द एमपी जॉइंट, डॉर्सल टू द पीआईपी जॉइंट. इन एडिशन किसी किसी मरीज की वो बड़ी ज़रूरत होती है कि वो फ्रोमन साइन को ठीक करना या पावरफुल की पिंच, सो कॉल्ड एडक्टर प्लास्टिक. उसके 2-3 चॉइसेस बड़े अच्छे हैं. अगर ब्रेकियोरेडियलिस को आप ले सकते हैं, उसको टेंडन ग्राफ्ट के साथ एक्सटेंड करें एंड पैस इट थ्रू द थर्ड स्पेस, थर्ड इंटरमेटाकार्पल स्पेस, और वहां से ला के वोलर साइड पे आप इसको एडक्टर के टेंडन के साथ अटैच कर. अगर वो नहीं करना चाहते तो आप एक्सटेंसर इंडिसिस प्रोप्रियस ले सकते हैं. उसको आप जनरली पैस थ्रू द सेकंड स्पेस. उसकी लेंथ पर इतनी होती है कि आराम से वो एडक्टर तक पहुंच जाता है. बड़ा अच्छा ऑपरेशन है. एक्सटर्नल इंडिसिस प्रोप्रियस को इस्तेमाल कर सकते. तो ये हैं मेन 3 नर्व्स के. हमने कवर क्या किया, प्रिंसिपल्स कवर कर लिए. फिर रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व. ये तो है बेसिक. अब जब हम जाएंगे कंबाइन में तो थिंग्स विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो वो पता नहीं हम इट इज अ गुड आइडिया के स्टेज पे वो हमें कंबाइन में जाना चाहिए या नहीं. सर मेरा ख्याल है अगर हम कंबाइंड के लिए अलग सेक्शन रख लें. हाँ, अलग कर लेंगे, क्योंकि वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. वो जो आदमी कर रहा है ना रेगुलरली, उसी को फिर वो समझ आती है. तो अगर आप इजाजत दें तो क्वेश्चन आंसर अब. हाँ, मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन आंसर का एड्रेस कर लेते हैं. ठीक है. So I request participant to please raise their hand and we can entertain few questions for another 10-15 minutes. कितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं, कितने इस सेशन के लिए? 83 हैं सर. हमने इस दफा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट. नहीं, गुड इनफ. इट्स अ रिस्पेक्टेबल नंबर. So any question from the participant please? हाँ जी, मसूद साहब. अस्सलाम वालेकुम शिमा साहब. सर क्या हाल है? मैं मसूद उमर बोल रहा हूँ सर. ये मैं मसूद उमर साहब बोल रहे हैं? जी 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 मसूद सवाल साहब, मेरा जी अल्लाह का शुक्र. सवाल सर मेरा ये था कि आप वो बड़े बड़े काम छोड़ के ये हैंड के छोटे कामों की तरफ किधर आ गया आज? बस वही मेरा सवाल था कि सर ये जनरल पब्लिक और हमारे ऑडियंस को आप ये बताएं कि टेंडन ट्रांसफर is the job of a general orthopedic surgeon या of a classified hand surgeon.
रेडियल नर्व इंजरी तो बहुत कॉमन है, लेकिन अल्नर नर्व और मीडियन नर्व इतनी कॉमन नहीं है, और उसके टेंडन ट्रांसफर अल्नर नर्व के तो काफी पेचीदा भी है। तो इस पे आपका इसका दो फैक्टर हैं। एक तो उसमें सिंपल आंसर ये है कि उसको करना चाहिए जिसको जिसको आता हो। हाँ, उसमें बेसिक असूल ये है कि वो कर सकता है जिसको ये काम आता हो। वो कोई भी हो सकता है, प्लास्टिक सर्जन भी हो सकता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हो सकता है। अगर बंदे को शौक हो तो वो ये काम थोड़ा सा सीख ले। तो बाकी मैं महसूस करता हूँ कि वो दूसरा हमारे वो लॉजिस्टिक्स का भी मसला है। नहीं, अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहें जस्ट टू द हैंड सर्जन, तो हमारे पास तो उतने हैंड सर्जन हैं ही नहीं। अब बहुत सारा काम हमारे जनरल प्लास्टिक और जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जनों ने करना है। तो हमें, मेरा अपना ख्याल है कि ये रेडियल नर्व पाल्सी तो बिल्कुल एवरेज वेल ट्रेन्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन शुड बी एबल टू डू इट। सिमिलरली अपोनेंस प्लास्टी भी मेरा ख्याल उसके रेंज में होना चाहिए, लेकिन फिर उसको ये जरूर एफर्ट करनी चाहिए कि वो किसी को करता देख ले। वो बिल्कुल किताब पढ़ के करने वाले जो मसला है ना, पहली दफा पहले कभी देखा भी नहीं है, उसके प्रोग्राम में होता भी नहीं है, वो किताब पढ़ के करने का शौकीन, उसमें मसला होगा। अदरवाइज मेरा अपना ख्याल है अगर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ठीक हो तो वेल ट्रेन्ड जनरल प्लास्टिक सर्जन और जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन both should be able to do simple tendon transfers. Thank you very much for taking out time. This is a great Right. privilege for all of us. Thank you very much, sir. बड़ा अच्छा है, thank you, thank you, thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. So for the CME certificate, each participant has to fill this form, and inshallah soon they will get the certificate. So, okay. So for the participant, we will have the recording of this seminar, and we will soon convey to you the link for the recording of this video. So we'll sure inshallah contact you again for few more seminar. So by that time, thank you very much for joining us, and Khuda Hafiz.